Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. Now class 10th, this is the 15th chapter I'm going to start. Probability. Hanji, probability beta hundi ki hai. But before I start again, I request jo bhi students new hai is channel te kindly subscribe it and press the bell icon. ताकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ so that you don't miss anything. Okay, so now very easy chapter, probability. Probability hundi kya? Probability is basically chance of occurrence of an event. Chance of occurrence of an event. Okay, ਹੁਣ ਇਵੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਇਵੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ. ठीक है, ते पेपर च पास बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कॉइन टॉस कर रहे हैं, हेड आएगा या टेल आएगी, मतलब एक ही चीज आएगी. हेड आने दी की प्रोबेबिलिटी है, टेल आने दी की प्रोबेबिलिटी है. ये सारियां चीजां की ने किसी भी चीज दा चांस किन्ने की ओनू अक्कर होंदा ओदे आने दे किन्ने की चांस है ओनू असी प्रोबेबिलिटी कहने हैं. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ. ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ. ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਨਾ, ਟੌਸਿੰਗ ਅ ਕੋਇਨ. ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ ਥਰੋਇੰਗ ਅ ਡਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੀਜੀ ਹੈ ਸ਼ਫਲਿੰਗ ਅ ਕਾਰਡ. ठीक है, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਹਲਚਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਊਟਕਮਸ. ਆਊਟਕਮਸ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਟ ਟਾਈਪ. ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਕੋਇਨ ਡਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? 1 ਆ ਸਕਦਾ, 2 ਆ ਸਕਦਾ, 3 ਆ ਸਕਦਾ, 4 5 6 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਸ. ਸੋ ਆ ਵਾਲੇ. ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ? ਪੈਕ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ. 52 ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ 26 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ 26 ਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਡ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ. ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਰੈਡ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ. ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਮੰਡ, ਹਾਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਟ, ਪਾਨ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਚਿੜੀ. ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੱਬ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੱਬ. ਠੀਕ, ਡਾਇਮੰਡ, ਹਾਰਟ, ਸਪੇਡ, ਕਲੱਬ. ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੇਡ ਦੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੀ 13 ਹੁੰਦੇ ਆ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ. ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ? JQK, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ JQK, ਜੈਕ, ਕੁਈਨ, ਕਿੰਗ.
13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਕਹਿੰਦੇ ਆ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਨੰਬਰ, 1 ਨੰਬਰ ਨੂੰ A ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ JQK, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 11 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 13। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? 3। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਮੀਨਸ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਆ, 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਰਟ ਚ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਚ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ 3 ਫੇਸ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਚ ਵੀ 10 plus 3। ਸੋ ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਕਾਰਡ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਕ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4। ਕੁਈਨ ਵੀ 4, ਕਿੰਗ ਵੀ 4। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ 52 ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਕਮਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇਵੈਂਟ। ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨ ਟੌਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਟੌਸਿੰਗ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन टॉसिंग कॉइन, एक ही हो गया मेरा, इनू असी कहने एक्सपेरिमेंट है नाम, ते इहदे आउटकम्स की है? हेड ते टेल की है? ये मेरे आउटकम्स है। ते इवेंट में अगर गल करनी हो, मैं कहा इवेंट की है? हेड इज 1 इवेंट। हेड की है? 1 इवेंट। इवेंट किहड़ा है? आउटकम दे विचों किसी एक चीज होण नूं, जिहड़ी किसी भी एक चीज नूं मैं कह देनी 1 2 3 कुछ भी आ सकदी इवेंट दे विच, वो की है मेरी इवेंट। हुण अगर मैं एग्जाम्पल सेकंड लवां, जिहड़ा सी इन टॉसिंग अ डाइस, कर लो टॉसिंग अ डाइस या थ्रोइंग अ डाइस। इन टॉसिंग अ डाइस ਇਹਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੌਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 1 2 3 4 5 6। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਊਟਕਮ। मान लो हुण मैं कहनी ईवन नंबर, मैं इवेंट की लईए, इवेंट मेरा जिहड़ा भी मैं जिहदे उत्ते मैं काम करना है, इवेंट में की लिया है? ईवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ईवन नंबर च केड़ा केड़ा है? 2 आंदा है, इचू चेक सिलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट 4 आंदा है तो 6 आंदा है। सो इवेंट इज द थिंग्स टेकन फ्रॉम आउटकम्स चों ही जिहदे उत्ते असीं गल करनी। ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, यू शुड नो आउटकम्स किन्नू कहते हैं एंड इवेंट किन्नू कहते हैं, बेसिक थिंग्स। क्लियर? हुण नेक्स्ट इवेंट तुहाडे ਜਿਹੜੇ है ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ब्रॉडली अगर मैं इवेंट की गल करा, वो हुंदा एक श्योर इवेंट। श्योर इवेंट जिन्हों असी सर्टेन इवेंट भी कह दिंने आ। अनदर नेम की है? सर्टेन इवेंट या पॉसिबल इवेंट। ठीक, वो भी लिख सकते हो वर्ड पॉसिबल इवेंट भी लिख सकते। दूसरा आंदा है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जेड़ी हो ही नहीं सकती। जिवें मैं कहां इहदे च एग्जाम्पल है गेटिंग number 7 in a throw of dice। in a throw of dice अगर असी डाइस थ्रो करते हैं 7 नंबर का आना, की ये आ सकता है? नहीं, तो ये मेरी की है? इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट्स में जड़ियां जड़ियां चीज़ां आ सकदियां जनरली। सो मेरा नाम इन्हों डिवाइड करते किस तरीके कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिकली हुण एक फॉर्मूला जिहड़ा है मेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी दा की हुंदा है? फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी नूं तो पहला फॉर्मूले तो पहला असीं 3 चीज़ां देख लियां की है? एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, इवेंट। हजे मैं तुहानूं वो भी दसना है कि आउटकम्स किन्ने आंदे आ। अगर तुसीं एक डाइस थ्रू करदे हो या 2 डाइस थ्रू करदे हो, ओहदे बारे भी गल करनी। प्रोबेबिलिटी दा फॉर्मूला की है? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवेंट, इवेंट ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ E, यानी ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ P of E। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? number of cases, number of favorable cases over divided by total number of cases। So this is very important। इनू तुसी ब्रैकेट च कर लो, किसी भी इवेंट दी जिहड़ा मेन साडे कोल हुण हैगा प्रोबेबिलिटी दा फॉर्मूला की है, किद्दां यूज करना वो मैं तुहानू दसूंगी। हुण इहदे विच फर्दर की है नोट, नोट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी कदी भी 1 तो वड्डी नहीं हो सकती। केड़ी चीज नहीं से मतलब 0 तो छोटी नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 तो वड्डी नहीं हो सकती, वध तो वध बराबर आएगी, ते 0 तो छोटी नहीं हो सकती। मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की रेंज की है 0 तो लेके 1 दे विचकार आएगी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कदी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं आ सकती। ते इधरों 1 तो वड्डी नहीं आ सकती, 0 तो छोटी नहीं आ सकती। नंबर 3, टोटल प्रोबेबिलिटी किदे इक्वल होंदी है? हमेशा इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी असीं जिन्ने भी इवेंट्स दी है, जिस भी इवेंट की गल करिए उन्हां दा सम करिए ते टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किदे इक्वल होंदी है? 1 दे, राइट। नेक्स्ट 4th, इनमें याद करनी है प्रोबेबिलिटी यस प्लस प्रोबेबिलिटी नो इक्वल टू 1। टोटल तो सन पता ही है ना 1। हुणे कदों किथे यूज होना है? इनू स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार। मैं तुहानू उदों दसूंगी जो क्वेश्चंस असी करने हैं। चलो अगला, इनू असी कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी कह देने एक हिसाब का। इनू इन शॉर्ट मैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी कहनी है। किद्दां कहने हैं वो जो क्वेश्चंस करांगे तुहानू उदों सारा क्लियर है। हुण स्टार्टिंग में सारे तुहाडे फॉर्मूले इकट्ठे कर देने हैं। प्रोबेबिलिटी नो दा मतलब हुंदा है, अगर मैं मैथमेटिकली टर्म्स विच लिखां, अगर मैं कोई इवेंट ई लेनी है, नो मीनस नो मतलब उत्ते बार पा दीदा या सी पा दीदा या डैश पा दीदा, दिस इज नेगेटिव ऑफ दैट। इधर की है प्रोबेबिलिटी इवेंट, आ लिखो चाहे आ लिखो चाहे आ लिखो, क्लियर। ये तुहाडा 4th फॉर्मूला है, जो जिहड़ा यूज होएगा मैं उदों दसूंगी। इनू कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी क्या जांदा है। नेक्स्ट 5th जिहड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट तक की मत क्या सी, जिवें पिछले एक्सरसाइज तुहानू देखो इम्पॉसिबल इवेंट की है, डाइस ते तुहाडे वध तो वध की आंदे 1 तो लेके 6 नंबर, 7 नहीं आंदा ते मतलब फेवरेबल। फेवरेबल दा इत्थे मैं तुहानू दसदा, फेवरेबल मतलब जिहड़े साडे हक च है, जिस इवेंट बारे गल कीती जावे ओदे हक च जिन्ने केसेस हन, 7 तो आ ही नहीं सकदा, फेवरेबल ही 0 हो गया। टोटल नंबर ऑफ केसेस किन्ने होंदे? 1 तो लेके 6 तक 6। ते अगर यही नहीं आ सकता तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी की होंदी है? हमेशा 0। लास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट केड़ी हुंदी है या सर्टेन इवेंट की हुंदी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जेडी की श्योर है टू अकर इज 1। So these are the 6 very important formulas or snapshot scenario दसदा है overview पूरे चैप्टर दा की इहदे च हुंदा है। Clear? Okay, now let's move on to some of your questions. Simple way best हुंदा है cards वाले कर ले। मैं बच्चों नू जो स्टडी करानी है, I never follow complete book, खुद भी विचों असी क्वेश्चन कर लीदे। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेनी हाँ, हुणे मैं तुहाडे क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, सो आई विल बी फॉलोइंग कंप्लीटली एनसीईआरटी। कुछ क्वेश्चंस ओदे चों ही मैं पिक करूंगी। पहले एग्जाम्पल ते आ जा 15.1 एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स ते आ जाने।
हाँ जी, एक्सरसाइज 15.1 स्टार्टअप कर रहे हैं। फर्स्ट है कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, पहले ही आ गया कितनी होंगी है टोटल, फोर्थ मार्क दसदा है 1। सेकंड ब्लैंक्स पहली दा आंसर है 1। सेकंड probability of an event that cannot happen is ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, impossible, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ such an event, ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, probability of an event that can, ਉਹਦੀ probability ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਰੂਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, impossible event। ठीक है। थर्ड, probability of an event that is certain, देखो श्योर विच में स्पेशली वर्ड लिखवाया सी तानू certain, है ना, तो certain दी में की probability की हुंदी है हमेशा 1, एंड ओनू असी की कहने हैं, श्योर इवेंट या certain इवेंट। नेम उदा की है ए। फोर्थ पार्ट, sum of the probabilities of all, sum of probabilities कहिए या total probability, word same है, so total probability हमेशा की होती है। थर्ड पॉइंट देखो 1, so fourth blank is 1। fifth, probability of an event is greater than और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू डैश, इच दो ब्लैंक्स है, सो ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ग्रेटर किदे तो है 0 तो, ग्रेटर हो सकती है बराबर हो सकती है 0 तो, लेस या बराबर कितने हो सकती है 1। सो फर्स्ट जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू दे विच आएगा 0 एंड लेस दैन इक्वल्स टू कितना है 1। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 5 blanks है, these are covered from my 6 important notes ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ हैं। Moving ahead, question number second is nothing but just a theoretical कि इन्ना जो दसना है equally likely outcomes किन्नू कहंदे हैं, मतलब किन्ना दे आन दे बराबर दे chances है। equally likely मतलब दोनों दे होने दी बराबर संभावना होवे। हुण तुसीं आराम नाल देख सकदे हो, फर्स्ट है ड्राइवर कहंदा अटेम्प्ट करदा है कार नू, the car starts or does not starts, एक ही है, equally likely है कि नहीं। हुण इहदे च बड़े फैक्टर है, रीजंस बहुत है, पहला वाला नहीं है क्योंकि कार क्यों नहीं चल रही, कई रीजन हो सकते, इंजन च आ सकता फॉल्ट, द फ्यूल च आ सकता है फॉल्ट, ਉਹਦੀ पिकअप दी प्रॉब्लम है, सो देयर आर सो मेनी रीजंस। पहला इक्वली लाइकली नहीं है। सेकंड, अटेम्प्ट कर रहा है प्लेयर बास्केटबॉल च पाण नू ते ਉਹ ਕੀ कहदा मिस करेगा या नहीं, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सारियां पेजेंट, मतलब इट्स नॉट इक्वली लाइकली। थर्ड, इन्ना जो कहते एक्सप्लेन करना है ना नाल हल्का, ये वैसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आया आज तक ते ना ही आन दे चांसेस ने। थर्ड पार्ट, ट्रायल जेड़ा है कहते ट्रू एंड फॉल्स, देखो या तो कोई बच्चा आंसर दे रहा है ते ओ की हो सकता है या ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा, इट मींस दोनों से एक ऑप्शन ते आएगी, सो दिस इज इक्वली लाइकली, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज इक्वली लाइकली। नेक्स्ट देखिए बेबी, हुन बेबी या तो बॉय होएगा या गर्ल, सो ए भी की है इक्वली लाइकली इवेंट है। क्लियर, मेन चीज आई क्वेश्चन नंबर फोर्थ थर्ड यू कैन डू अपने आप तुसी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की है, मैं उस पॉइंट पे आऊंगी जिदा दे क्वेश्चंस पेपर दे विच आंदे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। कैन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन, एक क्वेश्चन बहुत बार आंदा है, क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क दे विच, which of the following cannot be the probability, probability बच्चे दो चीज़ां नहीं हो सकती कि not greater तो वड्डी नहीं हो सकती, सॉरी मैं the wrong लिखते हैं, probability की नहीं हो सकती, 1 तो वड्डी नहीं हो सकती, दूसरा नेगेटिव नहीं हो सकती। हुण तुहाडे ऑप्शन दे विच बी पार्ट ते नेगेटिव है, सो ए नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ, ये भी क्वेश्चन आंदा है, हुण आया फिफ्थ च मैं तुहानू दसूंगी कॉम्प्लीमेंटरी रूल। चलो जी, फिफ्थ क्वेश्चन की कहना है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट दी दे दी है 0.05,
उन्होंने किदी पूछी है प्रोबेबिलिटी नॉट ई दी नो एंड यस है ਤੁਹਾਨੂੰ पता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट दी प्लस प्रोबेबिलिटी अगर मैं नॉट ई भी लिखदा या मैं लिखदा प्रोबेबिलिटी ई बार कुछ भी लिखा एदा फॉर्मूला नंबर केड़ा सी अपना नोट नंबर 4 जिनमें डबल स्टार क्या ना क्वेश्चन करावांगे तो क्वेश्चन नंबर नोट नंबर 4 एदा आंसर की होंगे इक्वल टू 1 हाँ जी एदा दिता होया बेटा 0.05 probability not E equal to 1 so probability not E ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ probability ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ your answer is 0.95 clear next sixth question. Let me see if the video is going long. So मैं next point है बेटा ये ना लंबी वीडियो चल जानी है so next question है जो 6th onwards you will be getting in the next video right so I finished this video here only because it will be getting too big so stay tuned for the next video for question number from question number 6 to the remaining exercise. So thank you. Do share it with your friends and press the like button when you watch the complete video. Thank you.